बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वायरस एक्ट्स ऑन सेल्स बाय इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस. अच्छा, इसमें सबसे पहले इस पॉइंट में समझने वाली बात है प्रोटो ऑन्कोजीन्स एंड ऑन्कोजीन्स. प्रोटो मीन्स बेस और समथिंग दैट कम्स बिफोर समथिंग. ऑन्को मीन्स virus and genes mean something that gives rise to a protein. Proto-oncogenes are normal structures. These are essential for cell growth and differentiation. However, mutations of proto-oncogenes form oncogenes that lead to unregulated cellular growth. Oncogenes are directly something that is abnormal. Proto-oncogenes is something that is normal. Now the question is, radiation causes cancer via proto-oncogenes or oncogenes? The answer is radiation has been shown to activate proto-oncogenes that give rise to oncogenes. An oncogene, read from the text here, that an oncogene is a sequence of deoxyribonucleic acid that has been altered or mutated from its original form. The original form was proto-oncogene. The unoriginal form is, or the generated form due to virus or radiation both, is the oncogene. Now here is written in the text, proto-oncogene is defined as normal genes causing cell suppression. Proto-oncogenes are normal genes that cause cell suppression or prevent the cell from these not only cause cell suppression, but there are also other different functions of a cell, like its growth, like its function in particular segment of the body where it lies. For instance, it helps in actions taking place. Now here is written that proto-oncogenes are the normal genes that cause cell suppression. In reality, proto-oncogenes not only cause cell suppression, but they are responsible for normal cell growth and differentiation. Normal cell growth and differentiation. Their abnormality results in the formation of oncogenes. There is a little correction. I told you that oncogene, onco means virus, no, onco means cancer. Cancer causing genes are called oncogenes. Now here is written from the Oxford Textbook of Medicine, Volume 1, page 449. The common cause of mutation of proto-oncogene is virus. Virus is a common cause. There is no doubt in it. But the most common cause would be chemicals that would lead to the formation of oncogenes. अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं रेडिएशन के हवाले से कि रेडिएशन कैसे डैमेज कॉज करेगी या कैसे ऑन्कोजीन्स की फॉर्मेशन करेगी और कैसे जो है कौन कौन से कैंसर्स कॉज कर सकती है. सबसे पहला पॉइंट, रेडिएशन डैमेज सेल बाय फ्री रेडिकल्स विच एक्ट्स ऑन DNA. Obviously damage would be in the genes that would result in the formation of oncogenes and therefore in the result in the formation of cancer. Radiation usually causes cancer after 10 years. 10 years की एक्सपोजर कम से कम हो तब जाके जो है वो कैंसर करेंगी. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर ड्यू टू फ्री रेडिकल फॉर्मेशन. Ionizing radiation in bomb blast will most likely cause leukemia. And which of the following system is most commonly affected by radiation? Hematopoietic. दोनों पॉइंट्स एक ही हैं कि जो रेडिएशन की वजह से कैंसर होगा वो ब्लड सिस्टम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. ब्लड सिस्टम में आपके पास हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कैंसर्स ऑफ द ब्लड, वाइट ब्लड सेल लाइनेज का, जिसमें ल्यूकीमिया वुड बी द मोस्ट कॉमन. AML, CML और सिमिलरली एक और कैंसर भी रेडिएशन की वजह से होगा, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड. फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड बीइंग गिवन रेडिएशन फॉर एक्स-रेज और समथिंग लाइक दैट. अच्छा, एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू टिश्यू बाय आयनाइजिंग रेडिएशन मोस्ट लाइकली डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर. जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन होगी आयनाइजिंग रेडिएशन की, उतना जो है वो टिश्यू डैमेज होगा. पॉइंट नंबर 160, एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इज़ P53. दो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से. वन इज़ P53 एंड द अदर इज़ रेटिनोब्लास्टोमा जीन. Also note this, point number 1 here in 160. P53 mutation occurs. What is mechanism of tumor genesis? Increased cell survival. P53 की म्यूटेशन से क्या होगा कि सेल जो है वो अपने साइकिल को मज़ीद कंटिन्यू करेगा. सेल का साइकिल जो है वो इनहिबिट नहीं होगा. P53 म्यूटेशन से सेल ग्रोथ अनरेगुलेटेड होगी, क्योंकि P53 रेगुलेट करता है प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल फ्रॉम G1 टू S फेज.
जब डीएनए डैमेज होगा, p53 की म्यूटेशन होगी, तो सेल की ग्रोथ जो है वो अनरेगुलेटेड और अनचेक्ड हो जाएगी. इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर जीन. नेक्स्ट पॉइंट, विच वन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर. अच्छा जी, ऑप्शंस में कैंसर होंगे गालबन, और उनमें से पूछा गया है कि कौन सा कैंसर जो है वो ऑन्कोजीन की वजह से हो रहा है. तो द आंसर इज ब्रेस्ट कैंसर. ये एक लिस्ट है जिसमें मैंने ट्यूमर्स दिखाए हैं जो कि ऑन्कोजीन की वजह से बन रहे हैं. इसमें सबसे पहले एस्ट्रोसाइटोमा, ये एक ऑन्कोजीन है, ग्रोथ फैक्टर की टाइप है, ग्रोथ फैक्टर ऑन्कोजीन. इसी तरह ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स में आपके पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जिसमें जो ऑन्कोजीन होगा वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर HER2 न्यू कहलाता है. इसी तरह रेट और किट, ये दो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं जिनकी म्यूटेशंस, पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से MEN2A, MEN2B, स्पोरेडिक मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, GI स्ट्रोमल ट्यूमर होगा. इसी तरह स्ट्रोक सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो भी ऑन्कोजीन्स हैं. ऑन्कोजीन अगर बन जाएं वो, तो उसमें रास जीन फैमिली और एबल और BCR में कार्सिनोमाज, मेलानोमाज, लिम्फोमास, CML एंड सम टाइप्स ऑफ ALL. इसी तरह न्यूक्लियर रेगुलेटर्स में सीमिक, एनमिक, एलमिक, जिसमें बर्किड लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल्स शामिल हैं. इसी तरह सेल साइकिल रेगुलेटर्स हैं जो कि मेंटल सेल लिम्फोमा और मेलानोमा कॉज कर सकते हैं, जिनकी एम्प्लीफिकेशन या म्यूटेशन जो है. ये एक लिस्ट है समझ लें लंबी, जो कि याद करने वाली है. इसमें कोई इतना ख़ास समझने वाला नहीं है. इट्स मोर ऑफ ए मेमोरी टाइप क्वेश्चन. अच्छा, एक पॉइंट बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है इस किताब में कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कैंसर है वो होगा ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, यानी कि ऐसी म्यूटेशन जिसमें फंक्शन किसी चीज़ का लॉस हो रहा है. अब नोट करेंगे जो p53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन का फंक्शन है वो है सेल की ग्रोथ को अरेस्ट करना, सेल की ग्रोथ को रोक देना. अगर इनका जीन उसमें फंक्शन लॉस हो रहा है तो सेल की ग्रोथ का फंक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, सेल की ग्रोथ होती रहेगी. बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है. p53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन ये अपना जो अरेस्टिंग एक्शन है या चेकिंग एक्शन है जिससे ये रोक रहे हैं सेल की ग्रोथ को, वो ख़त्म हो जाएगा. तो जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर ख़त्म होगा एक्शन और जीन्स कैंसर की तरफ जाएंगे. इसके बरक्स जो ऑन्कोजीन्स का कैंसर है वो है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. वो इस तरह के ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, न्यूक्लियर रेगुलेटर्स या सेल साइकिल रेगुलेटर्स, ये सारे एक ख़ास हद तक काम करते हैं. उसके बाद इनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है. सेल की ग्रोथ ए से लेकर, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेकर बी तक होगी, लेकिन अगर ये बी से सी तक और सी से डी तक जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इनके फंक्शन में इजाफा हो गया. फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर एक है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर बी, इसने अपने एक ख़ास रिसेप्टर पे जाके एक ख़ास हद तक काम करना है. अगर इसका काम जो है एम्पलीफाई होता रहेगा, एक लूप बन जाएगा, ऑटोक्राइन लूप, और ये प्लस 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 ऐड होते होते ये एक सेल को उसकी एक लिमिट से हटा के कैंसर की तरफ ले जाएगा. सो इट इज़ अ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करना कि p53 और रेटिनोब्लास्टोमा जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी और जो ऑन्कोजीन्स हैं उसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. Viruses, next point, virus cause cancer by alteration in proto-oncogene. Which of the following is caused by such mechanism? 3-4 ऑप्शंस हैं जिसमें कैंसर्स हैं मुख्तलिफ. तो पूछा ये जा रहा है कि वायरस की वजह से कौन सा कैंसर होगा. तो इसका जवाब है जी CML. CML इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और याद रहे कि इट इज़ काज्ड बाय अ वायरस. Next, girl with history of her sister and mother dying of metastatic breast carcinoma before the age of 40. Which warrants high risk in her? The answer is BRCA1. ये है एक आपके पास हेरिडिटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा की कॉज. तो उसमें जो म्यूटेशन होगी इसमें देखेंगे बिफोर द एज ऑफ 40, यंग एज में अगर ब्रेस्ट कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है तो इसमें एक हेरिडिटरी म्यूटेशन ऑलरेडी मौजूद है जो
पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हुई है। गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ हर सिस्टर एंड मदर, उसकी बहन और उसकी वालदा दोनों, यानी कि इट्स हेरिडिटरी, इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द डॉटर। तो द म्यूटेशन शी वुड बी कैरिंग वुड बी BRCA1। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्यूमर स्प्रेसर जीन एक्सेप्ट BCL2। BCL2 जो है वो है रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। जितना BCL2 एक्सप्रेस होगा उतना सेल स्टेबलाइज रहेगा। BCL2 कम हुआ, ट्यूमर स्प्रेसर जीन जो है BCL2 ये कम होगा तो सेल जो है वो डाई करेगा। अगर BCL2 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, सेल जो है वो आपके पास महफूज रहेगा और आगे प्रोग्रेस करेगा फ्रॉम 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 एंड सो ऑन। पॉइंट 161 कार्सिनोजन फॉर कैंसर ऑफ सर्विक्स इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। सब टाइप्स इंक्लूड 16, 18, 31, 33, जो कि वल्वा, वेजाइना, इनस, सर्विक्स, इनके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडनोकार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स कॉज करेंगे। अच्छा जी, कुछ कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर कॉज करेंगे। कार्सिनोजन इंक्लूड एरोमेटिक एमाइंस, फॉर एग्जांपल बेंजीडीन और 2-नेफ्थाइलामाइन। ब्लैडर का कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कॉज करेंगे। नाइट्रोसामाइंस जो हैं वो गैस्ट्रिक और इसोफेजियल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। आर्सेनिक जो है वो लंग, लीवर और स्किन का कैंसर कॉज करेंगी। लीवर में एंजियोसार्कोमा, दो कार्सिनोजेंस जो कि लीवर में एंजियोसार्कोमा कॉज करेंगी, में एक आर्सेनिक है और दूसरा है विनाइल क्लोराइड। ये लिख लें कहीं अलग से क्योंकि ये आगे MCQs में आ रहा है, इसमें नहीं है डायरेक्टली जो टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट जो है एस्बेस्टोस, इट काजेज लंग कार्सिनोमा। और लंग में जो है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज़ मोर देन द मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियल सेल्स जो हैं वो लाइन करते हैं प्लूरा को, तो ये जो है प्लूरा का जो कैंसर है उसको कम काज करता है ये जो एस्बेस्टोस है, लेकिन लंग कार्सिनोमा को ज़्यादा काज करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। सिगरेट स्मोक में इतने सारे कार्सिनोजेंस हैं। मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन वर्ल्ड वाइड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर पर्टिकुलरली कार्सिनोजेनिक इन सिगरेट स्मोक, और ये कार्सिनोमा काज करेगा इसोफेगस का, लेरिंग्स का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्लैडर का ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा और लंग का स्क्वेमस सेल एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लंग के जो कैंसर्स हैं उनमें से ये दो हैं जो स्मोकिंग की वजह से कॉज होंगे, और बाकी जो हैं ऐसे भी लंग के कार्सिनोमा है जिसमें जो है वो स्मोकिंग जो है कॉज नहीं है। तो डैट कुड बी मेटास्टेसिस टू द लंग और डैट कुड बी ड्यू टू सम अदर कॉज, नॉट स्मोकिंग बट इन पर्टिकुलर। एंड सिमिलरली एफ्लाटॉक्सिन एक कार्सिनोजन है, ये लीवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करेगा। इसके अलावा अल्कोहल कॉजेज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरोफेरिंक्स एंड अपर इसोफेगस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसी तरह विनाइल क्लोराइड पहले भी जैसे मैंने बताया हिपैटिक एंजियोसार्कोमा कॉज करेगा। नाइट्रोसामीन्स जो कि कुक्ड स्मोक्ड फूड्स में है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा कॉज करता है। इसी तरह जो है अब हम बढ़ते हैं कुछ MCQs की तरफ। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs। MCQ नंबर 7 देखें, इसमें लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs में। पेशेंट स्मोकर विथ COPD व्हाट एक्ट्स ऑन न्यूट्रोफिल इलास्टेज। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। बेसिकली ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं जिनमें एक एंजाइम होता है जिसको जो प्रोटिएसिस भी कहलाते हैं, उसकी एक टाइप है इलास्टेज। जो स्मोकिंग में से जो निकोटीन है that in particular acts on the neutrophil elastase and increases the activity of neutrophil main function which leads to COPD formation। ये एक important MCQ है जी। इसके अलावा जो विनाइल क्लोराइड हमने डिस्कस किया है that causes angiosarcoma of the liver, that is एक्सपोजर जो है उसका होगा पाइप फैक्ट्री में, PVC की फैक्ट्री में उसके वर्कर्स में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होगा। इसी तरह एक MCQ इसमें देखें, लास्ट 5th है या लास्ट 6th MCQ। 65 ईयर मेल नॉन स्मोकर प्रेजेंट्स विद वेट लॉस। नॉन स्मोकर है, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट किया है। नो हिस्ट्री ऑफ फीवर और डिस्निया। सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड। चेस्ट एक्सरे शोज 1 to 3 सेंटीमीटर। रेडियो ओपेक शैडो बाइलैटरल। डायग्नोसिस क्या होगी इसकी? मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। नॉन स्मोकर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट लॉस है, कैंसर की तरफ जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ फीवर या डिस्निया नहीं है, यानी कि TB की तरफ नहीं जा रहा।
सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड हैं और चेस्ट एक्सरे पे ओपेक बाइलेटरल शेडो है, शेडो भी आ गया है चेस्ट एक्सरे के ऊपर। ऑब्वियसली न्यूमोनिया नहीं है, ऑब्वियसली टीबी नहीं है क्योंकि फीवर की हिस्ट्री नहीं है, डिस्निया की हिस्ट्री नहीं है, तो ये एक मेट्स है। अ क्रोनिक स्मोकर, अब ये स्मोकर है, नेक्स्ट MCQ। क्रोनिक स्मोकर हैज़ हिस्ट्री ऑफ कफिंग, तो इसमें कफिंग भी है और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीयर्स, डिप्लोपिया, डिफिकल्टी इन टॉकिंग, MRI ब्रेन लाइकली शोज मेटास्टेटिक कैंसर। अच्छा, एक लास्ट MCQ इस सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर हेडिंग में। अ मैन प्रेजेंटेड विद अ डार्क कलर्ड नोड्यूल विद इरेगुलरिटी ऑन द डोर्सम ऑफ हिज राइट हैंड, ऑन एग्जामिनेशन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वर पैल्पेबल, द मोस्ट लाइकली कॉज इज। अच्छा, डार्क कलर्ड नोड्यूल है विद इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्जिन्स की रेगुलरिटी जो है वो समथिंग मिलिग्नेंट की तरफ इशारा करती है। ऑन द डोर्सम ऑफ हिज राइट हैंड, एक्सपोजर टू यूवी लाइट, इसका आंसर है जी आयनाइजिंग रेडिएशन होंगी, बल्कि यूवी लाइट में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होंगी जो कि विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine डाइमर्स इन DNA। pyrimidine डाइमर्स नॉर्मली एक्साइज हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, लेकिन इसमें जो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से वो एक्साइज नहीं होंगे और डैट वुड लीड टू कैंसर फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है नो द डिफरेंस, इसमें स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर। स्मोकर पेशेंट है जो कि प्रेजेंट किया है, स्मोकर प्रेजेंट किया है सिम्टम्स ऑफ कार्सिनोमा, जैसा कि अगर लंग का कार्सिनोमा है तो कफ होगी, वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, या उसके अलावा जो है उसमें लैब इन्वेस्टिगेशंस पे कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं। तो अगर स्मोकर है, स्मोकिंग उसको रिस्क फैक्टर जो है या कॉज ऑफ द कार्सिनोमा मेंशन करेंगे। लेकिन अगर नॉन स्मोकर है तो लंग कार्सिनोमा के अगर सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट हैवीनेस, कफ, हीमोटाइसिस, ऑन इन्वेस्टिगेशन ही वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ लंग कैंसर। कौन सा इन्वायरमेंटल एजेंट है जिसकी वजह से कार्सिनोमा हुआ है? तो आंसर इज रेडॉन। स्मोकर नंबर 1 कॉज स्मोकिंग, नॉन स्मोकर नंबर 1 कॉज रेडॉन गैस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो लिखा हुआ है नो द डिफरेंस एक्चुअली 60 ईयर मेल फैक्ट्री वर्कर। अगर जी फैक्ट्री वर्कर है और उसके साइन सिम्टम्स हैं सारे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के, एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर, तो उसमें कॉज फैक्ट्री वर्कर में विनाइल क्लोराइड, और अगर नॉन फैक्ट्री वर्कर है लाइक अ फार्मर है तो उसमें जो कॉज है वो आर्सेनिक होगी। ये इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट। फैक्ट्री वर्कर, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर, कॉज विनाइल क्लोराइड, PVC फैक्ट्री। अ फार्मर, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या एंजियोसार्कोमा, कॉज इज विनाइल क्लोराइड। थैंक यू वेरी मच।